तो आप आपके व्यूअर्स को सलाम दे दो सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Okay guys, आज we are going to start the transformer. As you can see by the name, it is the transformer basically used to change the voltage or current. By the name, as you can see, this is a device which transformer or electrical device consists of two or more coils of wires used to transfer electrical energy by means of changing magnetic field. Here are two things. We are using magnetic field lines, and what are we are going to change? Energy. Energy को हम change करेंगे from one form to another form. In this case, you can see there are two coils. One is input coil, this side, and this side is called secondary primary coil. Because जो भी voltage आपने change करनी है वो हमेशा इस साइड पे अप्लाई करते हैं. लेट्स सपोज ये AC वोल्टेज है जो कि आप प्राइमरी कॉइल पे दे रही हैं और वो उसको चेंज करेगी. सर बेल हुई है, एक सेकंड. ओके, आया सर. जी. The input voltage which is to be applied to the primary coil will change with the help of this iron core, because due to flow of current an EMF will produce by changing the current. Magnetic field lines will produce in the coil, and these I am showing these magnetic field lines by this yellow color, and these magnetic field lines will also pass through the iron core and cross the secondary coil. So by changing the current in primary coil, a magnetic field lines will produce, which also cross the secondary coil and also produce the EMF in the secondary coil. So input voltage will actually reach to the secondary voltage, and this side is called secondary side. Okay, अब जो वोल्टेज आप प्राइमरी पे अप्लाई करेंगे इसको आप बोलेंगे VP, और जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट है उसको IP प्राइमरी करंट कहेंगे, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल हैं इनको NP से रिप्रेजेंट करेंगे. Similarly, this side is secondary side, secondary coil. तो इसकी जितनी चीजें होंगी इसकी वोल्टेज को हम VS से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी करंट को IS से, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को NS से रिप्रेजेंट. So the basic purpose of this transformer is to change the voltage. Mean low voltage को high voltage में convert करेंगे और high voltage को low voltage में convert करेगा ये device. जी सर. अब इसके ये दो function हो गए. On the basis of these two functions, there are two types of transformers. Number one is step up transformer and number two is step down transformer. अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होंगे. तो मैंने आपको बताया इसका जो बेसिक पर्पस है वो वोल्टेज को चेंज करना है. अभी ये क्वेश्चन आपने जहन में रखना है कि व्हाई वी आर गोइंग टू चेंज द वोल्टेज. ये आंसर मैं भी आपको लास्ट में करता हूँ, क्योंकि ये इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग सारी जब आपको समझ आ जाएगी
then you will be able to understand the function. See, this is the construction जो अभी हमने पढ़ी. As you can see, a transformer consists of two coils or insulated wires. Both the wires are wound around the same soft iron core. The coil connected to the alternating voltage source is referred to as the primary coil, and the coil connected to the output is called as the secondary coil. And the working is how, when a voltage is applied across the primary coil, an alternating current is induced in the primary coil. And this alternating current induces an alternating magnetic field in the soft iron core, and these alternating magnetic field lines from the iron core cut the secondary coil and induce an alternating voltage across it. In this way, the electrical energy is transferred from the primary to the secondary coil. It is to be noted that the two coils are not connected to each other. अब इस पे एक पॉइंट आपने समझना है. हम दोबारा डायग्राम पे आते हैं. देखें, अभी आपने जो इससे पीछे 2 यूनिट्स पढ़े हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी वायर के अंदर से करंट पास करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी. मतलब करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है. फिर हमने इसका रिवर्स पढ़ा था कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ. तो वो दोनों प्रिंसिपल हम यहाँ इस सिंगल डिवाइस में यूज कर रही हैं. इस तरह से कि जब आपने यहाँ पे करंट दिया तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से जब गुजरेंगी तो यहाँ पे वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस कर देगी. मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुने. इसमें 2 स्टेप में काम हो रहा है कि जो आपने प्राइमरी करंट या वोल्टेज दी थी उसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, दिस वन. जी सर. और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी कॉइल से जब पास कर रही हैं, बार बार चेंज हो रही हैं, तो उनके चेंज होने से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा. करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट दोबारा प्रोड्यूस हो रहा है. तो इन दिस वे इनपुट करंट रीच टू द secondary coil through this magnetic field lines. तो इसमें पीछे दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रही हैं कि करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट बनता है. इज इट क्लियर? जी सर. गुड. ये जो अभी मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ये वो उसका आंसर है कि हाउ द वोल्टेज और हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क. ओके, अब हम आगे चलते हैं. जी, this one. If the core of the transformer is split and are separated by a considerable distance, then the transformer does not work because the magnetic field does not get transferred from the primary to the secondary. मतलब अगर आप कोर को स्प्लिट कर दें या उसको कट कर दें और उनको डिस्टेंस पे रखें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचेगी और इस तरह से करंट भी नहीं पहुंचेगा. इसके बाद हम ये देखते हैं इसमें ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन अ डीसी वोल्टेज. मतलब डायरेक्ट करंट पे ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करेगा. ये चीज याद रखनी है आपने. दिस इज बिकॉज अ कांस्टेंट वोल्टेज कैन नॉट कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि जो डायरेक्ट करंट आता है उससे जो है वो क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी लेकिन वो चेंज नहीं होंगी.
हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज भी करना है. Okay, so the answer for this is by changing the due to DC current, magnetic field lines will produce, but these field lines will not change. क्योंकि जो नेक्स्ट करंट प्रोड्यूस होना है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होना जरूरी है. तो इसलिए हम इनपुट पे एसी करंट लगाएंगे जिसके चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी और फिर आगे करंट बनेगा. Okay, now we see there are two types of transformers, step up transformer and step down transformer. Step up transformer क्या करता है? This will actually increase the input voltage. पहले इसकी condition हम देख लेते हैं. See, a step up transformer steps up the primary voltage. As a result, the secondary voltage is greater than the primary voltage. For a step up transformer, the number of turns of the secondary are greater and greater than the number of turns of the primary NP. So the voltage of the secondary Vs will also greater. This is the sign for greater. The voltage of the primary voltage. As you can see, यहाँ पे number of turns आपको secondary में ज़्यादा नजर आ रही हैं और primary में कम. And this is the condition for step up transformer. And secondary की voltage ज़्यादा होगी और primary की voltage कम होगी. मतलब फर्ज करें आप 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके हिसाब से यहाँ पे 100 वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है. तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. Okay, yes. The next one is step down transformer. In the step down transformer, conditions and the process would be reversed. Step down transformer steps down the primary voltage. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ये ट्रांसफार्मर रिड्यूस करेगा, उसकी वैल्यू को कम करेगा. As a result, the secondary voltage is lesser than the primary voltage. और इसके लिए कंडीशन जो पहले में थी वो रिवर्स हो जाएंगी. As you can see, number of turns in secondary should be less than number of turns in primary, and the voltage in secondary would also be less than the voltage in primary, as you can see in the diagram. So these are the two types of transformers: step up transformer, step down transformer. Step up transformer क्या काम करते हैं कि वो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो भी दे रहे हैं आप उसको इंक्रीज कर देगा. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? जो भी इनपुट वोल्टेज है उसको रिड्यूस कर देगा. इसलिए इन ट्रांसफार्मर्स के नाम स्टेप अप और स्टेप डाउन. राइट विच समझ आ गया? जी सर. Then we are going to the next. Where is the use of this transformer and what is the equation or formula to solve the problems regarding this transformer? First we use uses of transformer. Transformers are used in low voltage supply units such as So transformers are used in low voltage supply units such as mobile phone chargers to step down the alternating voltage from the main down to the
रिक्वायर्ड वोल्टेज। जैसे अब आपके मोबाइल चार्जर है, जी बेटा, ट्रांसफार्मर इज बेसिकली यूज्ड इन द मोबाइल चार्जर, क्योंकि मोबाइल की जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, मेन से 220 वोल्ट आ रहा होता है, वो सारा का सारा वोल्टेज हम मोबाइल को डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो उसके अंदर हम चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, 220 को लेस करके 6 वोल्ट पे लाते हैं। सर एक सेकंड, जी सर एक सेकंड दो। ये 2 सेकंड। 2 सेकंड। इसमें कोरोना याद नहीं। वैसे नहीं हो रहा मसला। रेहान, अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ओ सॉरी सॉरी। जी रेहान, स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा, तो मैं इसका बता रहा था यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन आवर मोबाइल चार्जर। अब हमारे मोबाइल की जो चार्जर है, इसकी मोबाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो लो वोल्टेज है, 6 वोल्ट या 8 वोल्ट, कितनी वोल्टेज होती है, जबकि जो मेन से आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है। चार्जर डीसी डीसी से तो नहीं काम करता ना? नहीं, चार्जर डीसी से नहीं काम कर रहा है, मेन सप्लाई से जो आ रही है ना, वो एसी से काम करता है। वो इसी से काम करता है। चार्जर नहीं, सॉरी, ट्रांसफार्मर। जी जी, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर चार्जर के अंदर भी ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, हाँ जी। उसको वोल्टेज को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। जी अच्छा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो क्या काम करेगा, वो वोल्टेज को कम कर देगा। इसके बाद हम देखें इसकी जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमने ये यूज करनी है, वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, where VP stand for primary voltage, or जी V सर। stand for secondary voltage, सेकेंडरी वोल्टेज। NP is primary number of turns and NS is secondary number of turns. सेकेंडरी। Okay, इसके बाद next देखें, एक और इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, equation to use when a transformer is 100% efficient, which is not possible, but we suppose that कि कोई ट्रांसफार्मर जो है वो 100% efficient है, मीन टू से जितनी इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई की है वो सारी की सारी आउटपुट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस। सो इफ वी सपोज दैट then the input power should be equal to output power. ये आइडियल का बता रहे हैं ना? ये आइडियल कंडीशन है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, because there would be some loss due to friction or heat of the, so we are taking ideal condition कि
प्राइमरी वोल्टेज जितनी थी वो तमाम की तमाम इनपुट वोल्टेज पे आ गई। जी प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर, और पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, वी आई या आई वी। वी आई। जी तो उसके मुताबिक ये इनपुट पावर हो जाएगी एंड दिस इज आउटपुट पावर। तो आई पी जी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस, और इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी पी ओवर वी एस इक्वल्स आई आई पी एस ओवर आई। आई पी। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें, अगर आप बी की वोल्टेज, प्राइमरी की वोल्टेज देखें और करंट देखें, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसी तरह से सेकेंडरी की भी वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहे हैं। मतलब here is voltage is inversely proportional to current। ऐसे ये पॉइंट मुझे समझाएं, बताएं कि समझ आ गया। जी सर। इसका मतलब ये हुआ जहां पे वोल्टेज ज्यादा होगी वहां पे करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा, और जहाँ करंट कम होगा वहाँ वोल्टेज ज्यादा होगी। वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। वैसे हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट हियर इज वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जी सर। ओके, ये जरा पॉइंट ध्यान में रखना। आखिर में हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने कि ये ट्रांसफार्मर हमने बनाया क्यों, हमें क्यों जरूरत पेश आई ऐसा डिवाइस बनाने के लिए कि हम वोल्टेज कम ज्यादा करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान में रखना। लास्ट में लिखने जा रहे हैं, energy losses in the transformer may be due to heating up of the coil or the wires, eddy current in the core or heat losses in the core, and sound from the core or the coil। मतलब जो एनर्जी लॉस होता है वो इन तीन वजूहत की वजह से होता है कि या तो ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाए या उसमें एक अपोजिट करंट प्रोड्यूस हो जाए। अपोजिट करंट जो होता है, जो इसको बोलते हैं हम एडी करंट, जो इनकमिंग करंट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, या उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाए। साउंड प्रोड्यूस होने से भी एनर्जी लॉस होगी। तो अब इनको हम ओवरकम कैसे करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। High voltage transmission is much more efficient than the transmission at much lower voltage. This is because by operating the grid at a high voltage, we can reduce the current in the cables and transformer and transfer the same amount of the electrical energy every second through them. Thus, less energy is wasted in the form of heat। ये वो पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये देखिए आगे हम चल रहे हैं, इस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं कि वोल्टेज हमने कम करनी है ज्यादा करनी है तो उससे करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, और करंट को चेंज करने से हमें क्या फायदा होगा। जी सर। चल। करंट चेंज करने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस करना। हाँ सर। Note, the greater the efficiency, the lower is the energy wasted in the cables. A step up or a step down transformer does not change the frequency of the output current। अच्छा, करंट की फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ वोल्टेज और करंट की वैल्यू पे चेंज करना है हमने।
अच्छा, अब देखिए, आपने हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, E is I'm equal pretty sure. to I square RT। ये फॉर्मूला पढ़ा था कभी? I think not जी, sure. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल के उसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और खासतौर पे जो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी करंट, उसमें ये फार्मूला आता है, आई स्केयर आर टी। अब हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आ रही हैं, या तो टाइम को चेंज करें, या रेजिस्टेंस को चेंज करें, या फिर करंट को चेंज करें। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो, फर्ज करें ये वापडर हाउस है और ये कंज्यूमर सेंटर है, मतलब हाउसेज है हमारे, यहाँ से ये केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी वोल्टेज, ठीक है। अब जब ये केबल्स के थ्रू पास करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और उस हीटिंग इफेक्ट से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। उस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और टाइम हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, हम करंट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। Current. इसका मतलब है जहाँ पे हम करंट कम करेंगे वहां पे हमें वोल्टेज ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जी। तो जो हीटिंग इफेक्ट है ये आई स्केयर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप आई की वैल्यू कम कर देंगे तो जो हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही है, वो भी कम हो जाएगी, और इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे हाउसेस तक, कंज्यूमर सेंटर तक पहुंच जाएगी। तो वायर्स के थ्रू जो हीटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही थी, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन करे। वापडा सेंटर पे हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर लगाएंगे कि जो वोल्टेज को ज्यादा करे और करंट कम कर दे। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? Step. Voltage. Step up. स्टेप अप, वेरी गुड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को ज्यादा करेगा और करंट को कम करेगा ऑन द वापडा हाउस। और हमारे घरों के बाहर जो स्ट्रीट्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिक आपने देखे हैं ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। वो ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, वो वोल्टेज को कम करेंगे और करंट को ज्यादा करेंगे, ताकि हमारे घरों में करंट इस्तेमाल हो सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा कंज्यूमर सेंटर पे? जी स्टेप सर। डाउन। Step down होगा ना? हाँ जी। जी, यहाँ पे वोल्टेज कम करनी है और करंट ज्यादा करना है, जबकि वापडा सेंटर पे वोल्टेज ज्यादा करनी थी और करंट आपने कम करना था, ताकि हीटिंग इफेक्ट या हीट लॉस जो है वो कम से कम हो, जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। It has led to the increased dependence on electricity. It has led to the automation of the industry, reducing demand for unskilled labor, loss of jobs, increased risk of the electrocution, increased demand, increased burning of fossil fuels, causing decreased air quality and causing respiratory irritation. तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपने एक दफा पढ़ लेंगे। सो इज इट क्लियर बेटा? जी सर। Good.